पर मैं ये कहती हूँ एम्पावरमेंट बच्चों के लिए, हमारे बच्चे एम्पावर्ड हैं, वो बेवकूफ नहीं है। तभी किसी ने बोला था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, हम बच्चों की जो बच्चा कुछ जानना चाहता है ना, हम उसको अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, क्यूरोसिटी, उसको मार देते हैं। बच्चा कहता है नहीं ये चीज कैसे करनी है, मैं करके देखूं, नहीं 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 नहीं, इसको हाथ मत लगाना, सूर्य का, नो 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 नो, तो पहले ही नो कर देते हैं। करेक्ट। फिर बच्चा कहता है कि पापा ये कैसे होता है, मम्मी ऐसे कहता है, मम्मी ये क्यों हुआ, बाद में आना बेटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ। आपने वहीं पे उसको मार डाला, उसको याद नहीं रहेगा और उसको एक मैसेज जाएगा दैट माय पेरेंट्स डोंट हैव टाइम फॉर मी because maybe I have asked the wrong question, so he learned not to ask. Everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today, I have with me Miss Ranjita Nath Ghai. She is the founder and director of RN Talks, where she wears multiple hats as a mentor, blogger, author, poet and story writer, graphic designer, motivational speaker, life coach, and passionate animal lover and activist. Having experienced life as a military daughter, military wife, and educationist, she has embraced and celebrated life of her own terms. She firmly believes that our imperfections are what makes us who we are, creating complete individuals. As a proud owner of several online platforms such as classicalpoems.com, foodalltime.com, rntalksllp.com, excitesubmit.com, she has showcased her literary work and published her books Man Ki Arzu, which received recognition at various platforms. One of them is New Delhi World Book Fair 2016 and Chennai Book Fair 2016. So her other publications are Twisted Tales, anthology of short stories, Lamo Se Lafzo Tak Kavya Sangrah, Sandal Sugandh Kavya Sangrah, Bhav Kalash Kavya Sangrah, and Verve. She has also been honored with prestigious awards including the Ideal Teacher Award, Pride of Women Award, Blogger of the Year, Inspiring Blogger of the Year, Award of Honors by Kshitij, Sarvapalli Radhakrishnan Award for 25 years of mentoring and as Best Educationist and Mentor, Social Media Star Award, Wonder Mom Award, National Education and Excellence Award, Women Excellency Platinum of India International Award. RN Talks, registered under the Ministry of Corporate Affairs in India, was founded with a vision to inspire lives of providing ethical and professional support to students. Over time, their services extended to include motivational, personality development, interviews, web designs, book editing, and content writing. With a team of passionate motivators and storytellers, RN Talks aims to understand and address the challenges faced by youth, from the classroom to their professional journey, ultimately inspiring lives through their work. So today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome Ranjita ma'am, the platform is open and now over to you. Good morning to all, and thank you, Jitendra, for having me here. Like I said, my main motto in life is imperfections are perfect, and I have a show also on this of imperfect perfections, and it's basically about all the special children जो है हमारे लाइफ में ऑटिज्म से डील कर रहे हैं और हर चीज से डील कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स लाइक दे गेट सो आई वुड से कई बार वो लोग बहुत थक से जाते हैं या हताश हो जाते हैं बिकॉज पीपल द सोसाइटी हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, कभी पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, कभी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, एंड वी पुट ऑल सॉर्ट ऑफ लेबल्स ऑन देम. So perfect imperfections मेरे हिसाब से is a perfect title for them, because what I personally feel that these children who we people think that we are perfect and we call them imperfect, rather I think they are perfect and we are imperfect. बिकॉज हमारे सबसे पहले तो क्या होता है ना, हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमको हम जजमेंटल होते चले जाते हैं एंड वी बिकम वेरी सिनिकल and we have our own sets of rights and wrongs and zero error syndrome and हमको हर चीज टिकी टिकी बू चाहिए, perfect चाहिए, which is not so in life.
Correct. बट दीज चिल्ड्रन हमारे हिसाब से दे इम्परफेक्ट, बट जो वो करते हैं उसमें वो परफेक्ट होते हैं, बिकॉज द फोकस, हमारे पास फोकस की कमी हो जाती है. सो जब when you said perfect imperfections, मैंने कहा थोड़ा बता दूं what is my perfect imperfect perfections. And basically like I would say I am एक इंग्लिश में कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. आई वुडंट से आई एम मास्टर ऑफ नन, बट आई एम यस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ मेनी. लाइक जहां जहां पे मैं जैक हूँ वहां वहां की मैं मास्टर हूँ. सो आई हैव लाइक आई एम सेल्फ टॉट. आई हैव नेवर लाइक मैं सीखने की कोशिश करती हूँ. आई गो टू पीपल, आई आस्क देम इफ दे विल टीच मी समथिंग. इफ आई फाइंड समथिंग वेरी इंट्रीगिंग, आई आस्क पीपल लाइक how have you done this, like इसको कैसे करते हैं. and if they are like very like ओ हम बता देंगे तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी, then I say जाओ मैं खुद ही सीख लूंगी. Correct. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. अगर तुमको सिखाने में तकलीफ होती है तो रहने दो, इतनी भी जहमत मत उठाओ, मैं खुद ही सीख लूंगी. बस क्या होएगा, 2-4 बार गिरूंगी, घुटने छिलेंगे, बेवकूफ बनूंगी, पर सीख लूंगी. आई लर्न by making my own mistakes. I'll make mistakes, I'll fall, I'll stumble, and I'll come out to be victorious because I have learned on the way. So, and being an army officer's wife, it has helped me because I have learned never to say no. Because what I feel is काम करने के 100 तरीके हैं, or rather you can put it the other way, काम नहीं करने के 100 तरीके हैं. I'll say आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, आज मेरा मूड नहीं करा, आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, आज मेरा लैपटॉप खराब है, आज मुझे बाहर जाना है, आज मेरी कुत्ते की तबीयत खराब है, फलाना फलाना फलाना. बट अगर मुझे काम करना है तो मुझे पता है कि मुझे वो काम करना है, मैंने गाड़ी उठा के जाना है या मुझे आज जल्दी उठना है. लाइक आज मैं इंटरव्यू के लिए उठी हूँ. Also, this topic is really interesting to me as well, like perfect imperfect life. I have also written a small article on this a few years back, and I really cherish that thing. We all have some perfections, some imperfections. That is how we are made up of. So we never should be judgmental about what other people have as a good trait or a bad trait. We only just have to see that what is the collaboration we can make with them, what is the learning we can take, what is the learning we can give. So that is how we should look life at. And I think we should first of all, Jitendra, accept ourselves. True. हम खुद ही को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमको दूसरों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें हैं. एक सिंपल सी चीज है मोटापा, हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. हम जीरो फिगर के पीछे भागते रहते हैं, अल्टीमेटली शीशे में देख के हम खुद से ही खुश नहीं होते. तो जब हम खुद से खुश नहीं है, जब हम खुद से हमको शर्म आती है, then tell me one thing, why should somebody else feel confident about me? और मेरा क्यों कोई दूसरा मजाक ना उड़ाए? मैं तो कहती हूँ उड़ाना है मजाक तो उड़ाओ, तुम मुझ पे क्या हंसोगे? मैं पहले खुद के ऊपर हंस के अपनी पूरी तसल्ली कर लेती हूँ, फिर कुछ बचता है तो तुम भी हंस लेना, कोई बात नहीं. एक मुल्ला नसरुद्दीन, आपने सुना होगा उनके बारे में. इट्स अ ओल्ड फिक्शनल कैरेक्टर, उनके बहुत सारे आते थे. सो ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्टोरी, बट ऐसा था कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पे जा रहे थे, कहीं पे वो गिर जाते हैं या समथिंग लाइक दिस, एंड आसपास के सारे लोग बहुत जोर जोर के हंसते हैं, देखो मुल्ला गिर गया, देखो मुल्ला गिर गया. वो इधर उधर देखते हैं, एंड देन ही गेट्स अप एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से हंसते हैं. सो लोग चुप हो जाते हैं, एंड दे आस्क हिम लाइक, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं खुद पे हंस रहा हूँ, मैं गिर गया अपने गधे से, मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ जब मैं गिर गया, और मैं खुद ही के ऊपर हंस रहा हूँ. तो उनको खुद के ऊपर हंसता देख के सारे लोग चुप हो गए, और जिससे कहते हैं ना, शर्म से पानी पानी हो गए, उन्होंने हंसना बंद कर दिया. सो दैट इज वन थिंग आई लर्न. ये आता था मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर एक फुल टीवी सीरीज आती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज समटाइम, 1980s की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे कहीं पे आती थी. तो वहां से मैंने ये सीखा कि पहले खुद के ऊपर हंस लो, ठीक है ना. That's the best way to look at life. चलिए मैम शुरू करते हैं फिर. The first thing I'd like to know from you is like, how did your past life has affected the person who you wanted to be in your life, career-wise, and what you are? See, in my past life, I'll tell you that I was a very, I was an extrovert, ठीक है ना, but I wasn't very smart enough. I was a घुघू,
ठीक है, आई वॉज वेरी वेरी गलेबल। कोई कुछ भी कहता था, मेरे को लगता था कि मैं उसके साथ अच्छी हूँ तो वो भी मेरे साथ अच्छा है। आई यूज टू टेक पीपल एट देयर फेस वैल्यू, एंड व्हेन समवन यूज्ड टू टेल मी समथिंग, आई यूज्ड टू जस्ट थिंक कि भाई मैंने जब इसके साथ गलत नहीं किया या मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो सामने वाला मुझसे क्यों बोलेगा, राइट? बट as I grew, I learned that that is not true. People have faces and they keep on taking it off and putting it on the way it suits them. So I have to get a little bit more stronger and I have to try to read those faces. Like, you know, थोड़ा smart होना पड़ेगा मुझे. So I, like, you know, stop not believing, बट इसको कहते हैं ना, मैंने सोचना शुरू किया कि ये ऐसा बोल तो क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लिटिल लॉजिकली। बेसिकली आई एम अ पर्सन हु थिंक्स फ्रॉम द हार्ट। मैं दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने से बहुत लॉजिकल हो जाते हैं और हम कई और छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, सो आई थिंक फ्रॉम हार्ट। तो मेरे पास से फ्यूचर में ये ज्यादा नहीं बदला है। बट येस, व्हेन आई got married to my husband, I came into the army as an army wife, and वहाँ पे I, like, you know, learned many things. I learned many things. I learned grace. I learned how to carry. I learned when to keep quiet. I learned how to kind of assimilate, think and talk. Just attack से नहीं बोल देना, you know. So past life, I would say I was very gullible, and I wouldn't say I'm not gullible right now, but I'm less gullible. ये फर्क पड़ा है. And then I would say, like, past life में, if you go back to my school culture, I was a mediocre student. I was a very mediocre student, जिससे शायद कभी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक क्लास में 40 बच्चे कुछ होते थे एंड मेरा रैंक हमेशा 21st आता था या 22nd आता था। सो पापा यूज्ड टू कॉल मी 21 नंबरी या 22 नंबरी। ही सेड इसका रैंक कंसिस्टेंट है। माने 12th तक आई वाज ऑलवेज इधर 21st रैंक और 22nd रैंक, बस एक का ऊपर नीचे होता था। उसके आगे मैं कभी नहीं गई। मैं कभी 19th 18th 17 भी नहीं आई, बट 20 21 20 भी नहीं गई, 21 22 21 22। सो आई वाज लाइक दिस। सो आज जब मैं बच्चों को देखती हूँ और पेरेंट्स को देखती हूँ एंड दे आर गोइंग फॉर 95%, अभी रिजल्ट्स आए हैं, एवरीबडी इज काइंड ऑफ हाईलाइटिंग, लाइक हमारे बच्चे के 99 आए, हमारे बच्चे के 95 आए, हमारे बच्चे के 92 आए। मेरे को लगता है यार हम तो कितने बेवकूफ थे। हम तो 40% में भी भंगड़ा करते थे। हम तो 40% में भी भंगड़ा करते थे कि भैया 21 नंबर आ गया, निकल गए, खुश हो गए। एंड आज मैं अगर देखती हूँ अपने आप को, सो आई हैवंट डन वेरी बैडली फॉर माई सेल्फ। आई हैव बीन अ मेंटोर। मैंने पढ़ा, यस, मैं मेहनती हूँ। सो वो पहले भी थी, आज भी हूँ और शायद आगे भी रहूंगी। सो आई बिलीव इन कर्मा, सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। सो ये चीज शायद मेरे पीछे से आगे तक एक कंसिस्टेंट फैक्टर रहा है। जैसे मेरे 21st एंड 22nd रैंक था, बट आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट रैंक एंड आई वुडंट से टुडे ऑल्सो कि मैं तारे पकड़ के लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। आई हैव मेड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी ओवर देयर। और जब मुझे लगता है कि कुछ स्टैग्नेंट सा हो गया पानी, तो मैं थोड़ा उथल पुथल कर देती हूँ, एंड दैट्स अबाउट ऑल। आई गेट द चेंज आई नीड। And that's the best way. When you feel like you are stagnant or things are not moving up, you try to learn something new or maybe try something, exploring something new. That is the best way. Yeah. So ma'am, if I ask you things you are passionate about in your life, so what are those? One I'm very passionate about is teaching. मुझे कोई भी कहीं पे कैसे भी मिल जाएगा, मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगी, ठीक है ना। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज क्वाइट स्मॉल, मैं अपनी मम्मा की साड़ियां ले लेती थी जैसे तैसे लपेट के। उस टाइम पे मोजाइक वॉल्स होती थी, आजकल तो टाइल्स वगैरह आती है, वॉलपेपर्स होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s। सो मोजाइक हाफ वॉल तक मोजाइक होती थी, तो मैं स्कूल से छोटे छोटे निट्स एंड बिट्स लेकर आती थी, चौक के जो टीचर फेंक दिया करते थे, एंड यूज्ड टू अपने सारे खिलौनों को बिठा के आई यूज्ड टू टीच देम। सो उस टाइम पे सबको ये लगता था कि वो बच्चा घर घर खेलता है ना, सो ये भी खेलती है। सो बट दैट continued in my life, and I kept on upgrading myself, and I was teaching for 29 years, good 29 years. Great. And then I stopped it. So एक तो mentoring is my passion,
वहां से हट जाओ तो इट्स एनिमल्स. I'm like nut about animals. It need not be dog or a cat. It can be anything. Anything moving. And मेरे को डर नहीं लगता चाहे वो wild हो, चाहे वो domesticated हो, चाहे वो pet हो. If an animal is in distress, there's nothing that will stop me from reaching out to the animal. Even if it is a bat, चमगादड़, or it is a owl. I have had these. मेरे पास टूटे फूटे conditions में आए हैं. I've had a bat, I've had an owl, I've had doves, I've had parrots, and सबको घर लाई हूँ, सबको देखा है, सबको देखभाल किया है, and release कर दिया है. And then animals, of course, I am a ardent dog lover. I work with rescues. So एक ये है, and then I have very weird passions. Okay, then I just love perfumes, good perfumes, not those cheap types, but good ones, real good ones. Like Right. just one dot and it lasts you the whole day. They're those exotic ones. I am into perfumes. I just love them. I have a good enough collection. I think बहुत सारी हैं जो मैं बस रखती हूँ और कभी यूज करती हूँ. कलेक्शन खत्म ही नहीं हो रही मेरी. And my Right. husband so sick of me. He says तेरे पास दो अलमारी के दो ड्रॉयर्स भरे पड़े हैं, तू कभी यूज भी नहीं करती और लाती रहती है. सो इट्स काइंड ऑफ अ पैशन कलेक्शन व्हाटएवर. एंड देन ड्राइविंग. यस, आई जस्ट लव ड्राइविंग एंड आई कैन ड्राइव एंड ड्राइव एंड ड्राइव द होल डे. अगर मेरे हाथ में गाड़ी आ जाती है, so I can just drive the whole day. Right. So that's some weird passions. Not everybody is very keen on these kind of things, but that's me. I'm a little weird, I know that. Nice to hear about your passions. And now, if I talk about your work and experiences, how you started your career, what all you did do now. See, when I had finished my college, and उस टाइम पे क्या होता ना, पापा मम्मी बोलते थे, हम लोग सुनते थे. आजकल तो हमारे बच्चे कुछ सुनते ही नहीं है. बट Right. उस टाइम पे होता था, बेटा आपने ये करना है, आपने ये करना है. सो आई वाज लाइक ओके, मैंने ये करना है. सो इट वाज इन 10th एक्चुअली व्हेन माय फादर सेड कि बेटा आप मीन्स यू विल गो फॉर साइंस. एंड आई सेड नो साइंस फॉर मी, मेरे को आर्ट्स में जाना है. आई वाज प्रीटी श्योर मैंने आर्ट्स में जाना है. सो ही वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक बिकॉज माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ डॉक्टर. हमारे खानदान में या तो डॉक्टर्स हैं या तो लॉयर्स हैं, दोनों तरफ से. मेरे मदर की तरफ से डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर. इसके आगे उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं. Right. I wanted to go in for advertising. I joined advertising, graphic design सीखा. I went in for advertising and advertising के लिए जाके मैंने फिर DTP, PageMaker, Ventura ये सब सीखा. Joined advertising, went in for book publishing. धीरे धीरे I started finding my passions, and वहाँ से then I kept doing that. Then I fell in love with an army officer and I married him. And वहाँ से थोड़ा diversion चालू हुआ. Actually, Papa was always telling me कि बेटा तेरे को teaching इतनी अच्छी लगती है. और हमारे घर के सामने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का था आउटलेट. सो ही सेड यहाँ से ज्वाइन कर लो, तुम कर लो. ऐसे मुझे नहीं पढ़ाना. मैंने बहुत वो कर लिया. मेरे को थोड़ा अलग कुछ करना है. सभी लोग तो टीचर बनते हैं, टीचर बनने के लिए बहुत टाइम है. मेरे को एडवर्टाइजिंग में जाना है. सो आई वेंट स्पेसिफिकली इन फॉर बुक पब्लिशिंग. Right. And I had good enough folders like MMTC with me. And तब जब हिरोशिमा में एशियन गेम्स हुए थे, उसका सारा काम मेरे हाथ में आया था. I was third in command. So उसका सारा brochure, booklets, सभी कुछ मैंने डिजाइन किया था. Then my daughter was to be born and eventually that was a 9 to 5 job. 5 से भी ज्यादा हो जाता था, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता था. क्या है ना, कोई चीज जुनून से करो तो आप घड़ी नहीं देखते हो. तो मेरा ऐसा था. एंड देन बेटी पैदा हुई. देन आई लेफ्ट एवरीथिंग, बैठ गई आराम से. 6 years I had my daughter, I had my son. 6 years I sat at home and then I thought, now what? एडवर्टाइजिंग में जाऊंगी तो बच्चे टाइम नहीं है. 9 से 5, 9 से 8 का काम, बच्चे छोटे हैं. व्हाट टू डू? आई सेड ओके फाइन, गो बैक टू टीचिंग. So I went back to teaching and I restarted my career. You can say I had 2 parallel careers. So advertising का जो काम था मैं freelance करने लगी and I started studying again. And I did my DEC, I did my B.Ed, I did my MA, and I went on studying and studying. और मेरे बच्चे जैसे जैसे ऊपर आते गए, मैं भी उनके साथ साथ अपने आप को क्वालिफाई करती चली गई. By the time they came into 10th, I did completed my TGT training and all that, CSB and CTET सब कर लिया. एक बार वो लोग 11th 12th में निकल गए,
माने नहीं सुनने वाली एज में आ गए. सो आई वेंट बैक टू माई आई वेंट बैक टू माई प्राइमरी एंड आई न्यू कि यहाँ तक उनको पढ़ा दिया है मैंने, सपोर्ट दे दिया, अब जरूरत होगी तो आएंगे, अदरवाइज ठीक है. देन प्राइमरी में आई वॉज वेरी हैप्पी. आई टोल्ड यू आई वॉज टीचिंग फॉर 29 years. सो फुल पैशन वो था. एंड देन आई वॉज एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन. तो वहां पे मेरा निकल आता था जो मेरा क्रिएटिव टैलेंट था, जो मेरा एडवर्टाइजिंग का था, वो सारा यहाँ पे आ जाता. आई वॉज प्रीटी हैप्पी डूइंग दैट. वहां से इफ यू से 29 years के बाद देन कुछ ऐसा हुआ. माई डैड हैड सीए and I could not work and look after my father. And being in the army, we were always traveling. हर 1.5 साल में हमारी पोस्टिंग आ जाती, हर 1.5 साल में नया स्कूल, नया इंटरव्यू, नया जॉब, नए लोग, नए दोस्त, नया घर, सब कुछ नया. मेरे बच्चों के लिए नया स्कूल, तो मेरे लिए भी नया स्कूल, नए दोस्त, नया यूनिट, नया नई नौकरी, नए से इंटरव्यू, सब कुछ नया नया नया. देन 1.5 साल के बाद सब पैक करो बॉक्सेस में, देन अगेन नया नया नया. So around 30 years I spent like this. And after that you can say just kind of took VRS, voluntary retirement ले लिया मैंने कि बस अब और नहीं करना. But like I told you, teaching is my passion. तो पढ़ाना तो था ही, मुंह तो बंद रह ही नहीं सकता हमारा. So I started off with RN Talks, जहाँ पे हम बोलते भी हैं. I make quizzes, I write articles, and like on mental health for children, for parents, how to deal with, because as a mentor मैंने इतने सारे issues देखे हैं 29 years में कि अगर मैं उनके ऊपर लिखती रहूं तो भी मेरे को समय बहुत कम है. So I pick up those issues on my RN Talk. Then Perfect Imperfections है for special needs children, ये मैंने खोला है. And then I'm a foodie. I love my cooking. I love my मी टाइम. मेरा मी टाइम होता है जब मैं अपने आप के लिए ना कुछ कुकअप कर रही होती हूँ, समथिंग नाइस. सो देन आई स्टार्टेड माय फूड ब्लॉग एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल. एट दिस स्टेज आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी कि भाई पैसा दे दो, मेरे को सोना खरीदने जाना है. इट्स लाइक ओके ठीक. आई कैन indulge in my luxuries, and I always tell my husband, your money is our money, my money is my money. So my money is my money, his money is our money. I always tell him, वो 7 फेरे याद है ना, तो तुम्हारा पैसा मेरा पैसा भी है, so मैं उसको भी खर्चूंगी. But if I have to go outside the budget and spend lavishly, so I have enough. I'm very laid back in my venture. I don't push people, I don't push myself. I take a lot of time to enjoy my life. And अच्छा चल रहा है. And I'm into looking after dogs and destitute animals and rescues. So they also take up a lot of my time. So आराम से chilled out. Great, that's wonderful. So if I talk about next 5 to 10 years, what would be your vision, mission and goal in life? See, next 5 years I would like to be, which is impossible I know, but मेरे को ढेर सारा पैसा चाहिए जैसे टाटा एंड अंबानी के पास है. I want to open up, मेरे को जमीन लेनी है एंड वहां पे I want to put all the strays inside ताकि कोई सड़क पे ना गाड़ी के नीचे आए, ना कोई फालतू मरे, ना किसी को कोई मारे. I really wish मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना, तो मैं वो सारा पैसा, I just don't understand why these people are not doing it. They have so much money. They can buy worth 1,000 properties in London and anywhere, but nobody's doing anything for the strays. So I would like to do that. But other than that, which is a very far-fetched, मुझे इतना कोई पैसा देगा नहीं. So in the next 5 years, where I think is I'll be adopting lots and lots of dogs and bringing home as many as I can, terminally ill patients. That is what I do basically. Friendicos है, Posh है, we are in Noida. So I tell them कि आपके पास कोई ऐसा जानवर हो या कुत्ता जिसको कोई लेना नहीं चाहता है, senior dogs, terminally ill dog, cancer patients, give them to me. Give them to me. I'll look after them till their last breath. It can be 2 months, 3 months, maybe a year, maybe 2 years. पर मैं उनको रखूंगी and they'll die happy, they'll die loved. And there will be less of abandoned dogs. There will be less of heartbreaks out there. So in the next 5 years, I plan to reduce heartbreaks and rescue as many as I can.
बाकी ह्यूमन फोरम पे तो हमारा मोटिवेशन चल ही रहा है, सो आई प्लान टू टच ऑन एज मेनी लाइव्स एज आई कैन, स्टूडेंट्स मोर, सो दैट लाइक these suicide rates and this depression और जैसे these things can come down, we can be a little more happy and like I said, accept ourselves. We Right. should learn to it. So I'll be working towards this, more of acceptance of self. First get comfortable with your own self and then आराम से हो जाएगा. दिस इज व्हाट द प्लेन ऑल्सो सेज, इफ यू फ्लाई ऑन द एयरलाइंस तो आपको क्या बोला जाता है कि आपातकालीन उसमें जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन अपने मुंह पे लगाइए और उसके बाद अपने साथ वाले के मुंह पे लगाइए, राइट? सो यही लोगों को बताना है कि जो वहां पे बोला जाता है वो यहाँ पे भी लागू होता है. सबसे पहले हम खुद को ठीक करेंगे, उसके बाद हम दूसरे को ठीक करने जाएंगे. लेट्स एक्सेप्ट एंड गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स लव आवरसेल्फ. बाकी सब अपने आप हो जाएगा. Correct. So, if I talk about your personal and professional journey so far, so what are 2-3 most important life lessons, learnings you have? Most important lessons I have learned is never talk about what you are going to do. क्या होता है जब मैं किसी को बता देती हूँ ना कि मैं ये प्लान कर रही हूँ या मैं ऐसा कुछ मैंने दिमाग में सोचा है करने का, तो वो चोरी हो जाता है आइडिया. मुझसे पहले अगला करके बैठ जाता है और मेरा ही आइडिया, मेरे ही वर्ड्स, मेरा ही स्लोगन, मेरा ही लोग लेके चले जाते हैं और फिर मेरी चीज मुझे नए से सोचनी पड़ती है. लाइक द आइडिया इज स्टोलन. सो दिस इज वन थिंग आई हैव लर्नड इन this professional voice. If you're thinking something, just keep it. अपना मुंह को zip up रखो. Don't get over excited and blah 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 blah. सबको मत बताओ. जब तक कर नहीं लोगे, करके दिखा नहीं दोगे, चुप रहो. पहले करो और फिर लोगों को देखने दो कि तुमने क्या किया. Rather than blurt out the plans and then have them all ideas stolen. You rightly It's, pointed. I think better that way. Correct. कर लो, लोग देखेंगे, अपने आप पूछेंगे तो बता भी दो. I have got nothing to hide. If somebody asks me कि यार ये चीज बहुत अच्छी लगी, कैसे करी, मैंने कहा आपके पास टाइम है तो बैठ जाओ, मैं सिखा देती हूँ. सब सिखा दूंगी. That is what even my food blogs are like that. My recipes that I put out on my food blog, they are 100% आपको आधा चम्मच भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. एकदम नपातुला अगर डालोगे ना तो एकदम सही होगा. There is no hidden recipe, there is no hidden item, nothing. Correct. मेरे को लगता है मेरा नाम खराब हो गया अगर मैं गलत कोच दूं. एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा एक गलत वो जा रहा है, मैं गलत बता रही हूँ आपको. सो मैं सब बताऊंगी सही आपको, पर पहले मैं खुद कर लूंगी, दिखा दूंगी, फिर आपको चाहिए तो आ जाना. Correct. ये है. दूसरा मैंने ये सीखा है कि people wear masks. I don't wear it is a different thing, but people wear masks and I have to learn to accept it the way. Either I accept it or I don't. So it's better I accept it and it goes back to the same thing. Accept karo and then don't divulge all your secrets. Just be happy where you are and चलता जाएगा. I think this is the biggest, जिसको कहते हैं ना सब कुछ राउंड एंड राउंड घूम के इसी के ऊपर आ जाती है. Don't blurt out your plans. करो, प्लान करो, करो, एग्जीक्यूट करो. Right. And then let people talk about it and come back. That is main. मैंने बहुत लात खाई है एक्चुअली में. Correct. I have learnt it the hard way. I have got ठीक है, लोगों ने फायदा उठाया है, उठाते हैं. It's not their fault. It was my fault that I was so naive कि मैंने सब बता दिया. नहीं, उनकी क्या गलती है? मैं सब बता दूंगी तो वो तो मिल ही गया ना. गलती तो मेरी है, मैंने क्यों बताया. हर तरह के लोग हैं, जेन्युइन लोग भी है और लोग वो भी हैं जो फायदा उठाने की हाँ, कोशिश तो करते यहाँ पे भी गलती मेरी है. मैंने पट 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 करके सब बता दिया. सो राइट. अगर उन्होंने ले लिया तो मैं दूंगी तभी तो लेंगे ना, मैं नहीं दूंगी तो नहीं लेंगे. So I can't blame them. That was also a very big lesson learned. So everything comes back to us ultimately. So we have to realize that the ball starts rolling from our end. We cannot blame others for the things that we do or actions or decisions we take. We have to take the responsibility of our actions. चाहे वो अच्छा निकले, चाहे वो बुरा. Correct. So that's nice to hear, ma'am. Now, if I talk about the core theme of the discussion which we were talking about initially, so can you elaborate on how to embrace diverse talents, experiences, and imperfections, which leads to empowerment and transformation in lives of individuals? Very good question, Jitendra. I'll take examples from my own life. Okay. So, first of all, to embrace any kind of a thing and move on in life, we have to first learn to accept ourselves. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे लाइफ का नहीं है.
इट्स अबाउट फ्रॉम दैट मूवी, क्या गॉन केस देखी है होगी, आई डोंट नो, बहुत आई थी बीच में, दैट देयर इज दिस मैन हु इज बॉल्ड, ओके, गंजा है, और वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और उसको चाहिए कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसको बुरा लगता है, पर वो खुद ही को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और वहीं पे ही मीट्स दिस गर्ल जिसको एक बड़ा सा हैंडसम सा लड़का चाहिए था, शी लाइक्स दिस बॉय, और वो विग लगा के जाता है, तो बाद में पता लगता है कि उसने विग पहनी है, सो शी रिजेक्ट्स हिम, बट वो मोटी है, प्लम्पू है, ठीक है ना, एंड द बॉय रिजेक्ट्स द गर्ल क्योंकि वो मोटी है, एंड द गर्ल रिजेक्ट्स द बॉय क्योंकि वो गंजा है, ओके, एंड बोथ आर नॉट एबल टू डील विद देयर ओन सेल्स, बिकॉज उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया अपनी कंडीशन को। जिस दिन वो लड़का अपने गंजेपन को एक्सेप्ट कर लेता है, he is more confident, और उसकी पर्सनालिटी निकल के आती है, एंड पीपल आर इन ऑ ऑफ हिम कि यार तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड the day the girl accepts her like, you know, plumpiness, a little plus size, she learns to carry herself more confidently, and the boy also appreciates her. So I think सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है जितेंद्र, दैट लोग तो हमें क्या ही एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद ही को एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। हम लोग जो कहते हैं ना सेल्फ लव नाम की चीज हम भूल चुके हैं। वी आर सो मच इनटू पीपल प्लीजिंग, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लाइक यू नो, कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा एक अस्तित्व है, हम हैं, आई एग्जिस्ट, आई नीड टू फर्स्ट लव माई सेल्फ। लोग मुझे तभी प्यार करेंगे व्हेन आई एम चिल्ड आउट इन माई ओन जोन, तभी तो लोग मेरे से इंटरेक्ट करने पसंद करेंगे। इफ आई एम सो फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड इफ आई एम सो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, मैं खास किसी को सिक्योर अरीना दूंगी? मेरे अपनी इतनी सारी इनसिक्योरिटीज मेरे पीछे पीछे और मेरे साथ साथ चल रही होंगी कि मेरे साथ कोई सिक्योर फील नहीं कर पाएगा, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज उनके ऊपर थोपती रहूंगी। True. So my father, when I was in class 10, I told him, like I've told before, कि पापा मुझे साइंस में नहीं जाना and मुझे आर्ट्स करनी है। So just imagine that father, उनकी क्या हालत हुई होगी, who's himself a doctor in the army, wife डॉक्टर है आर्मी में, and पूरा खानदान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स से भरा हुआ है। उसकी बेटी उसको मार्केट में कहती है कि मेरे को आर्ट्स करना है। आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है हमारे खानदान में किसी ने नहीं देखी है, मेरे वजह से अब लोग जानते हैं, बट आज भी अगर मेरी मम्मी से पूछे कि साइंस लेना है बेटा, ना मम्मी यार तुम नहीं सुधरोगी, बुढ़ी हो गई 80 साल की, बस साइंस लेना है। कोई भी बच्चा पास आउट होता, बेटा साइंस ले ले, मैं कहूँ क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हो, छोड़ दो ना, बच्चे को अपने तरीके से जीने दो। एक मेरे को वहां पे ब्रेक मिला था, मेरे फादर ने दिया था कि डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। like I told you, I was a very imperfect person, very imperfect, ठीक है। एंड देन मेरा कोई सोने का टाइम नहीं है। मेरे को ये लगता है कि जितेंद्र, जरी सारी दुनिया जागती है, लोग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मैं 12 बजे सो के उठती हूँ, लोगों का हाफ टाइम भी खत्म हो चुका होता है। राइट। 12 o'clock I get up from my sleep and I'm like, okay, दुनिया क्या कर रही है? And then I say, ओए तेरी खाना बनाना है, and I rush into the kitchen, फटाफट फटाफट I cook up the food, and after that, after 3 o'clock in the afternoon, my work starts, and it continues right till 6 a.m. in the morning the next day। जब सारी दुनिया थक के 12 बजे रात को सो जाती है, मेरा काम चलता रहता है सुबह 6 बजे तक, और जब वो लोग जाग रहे होते हैं मैं सो रही होती हूँ। So you can understand how imperfect I am, what wrong schedules I have, ठीक है, but I still say I am enjoying it, ठीक है। So मैं यही कहती हूँ लोगों को, देखो, why do we need to be perfect? Accept कर लो कि हम imperfect है, accept कर लो हमारे सामने वाला बंदा भी imperfect है, ठीक है। Now after we have accepted our imperfections, you'll find out slowly that you are not that imperfect. We are just human. हमको ना एक जीरो एरर सिंड्रोम दिया हुआ है सोसाइटी में, ठीक है ना। आर्मी में हम इसको जीरो एरर सिंड्रोम कहते हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको गलत बोलना नहीं चाहिए, आपको गलत पहनना नहीं चाहिए, आपको गलत खाना नहीं चाहिए, आपको गलत दिखना नहीं चाहिए। माने आप मोटे नहीं हो सकते हो, आप लूज कपड़े नहीं पहन सकते हो, आपको फैशन में चिक रहना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, छोटों से सही बोलना चाहिए, बड़ों से सही बोलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लुक प्रॉपर, यू शुड डू प्रॉपर। फॉर लेडीज आई वुड से पहले माँ बाप की सुनते रहो, सही सही सही,
फिर हस्बैंड की सुनते रहो, फिर इन-लॉज की सुनते रहो, फिर अपने बच्चों की सुनते रहो, फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की सुनते रहो। बस करो यार, कितना सुनोगे, कभी खुद की भी सुन लो। True. इतनी शिद्दत से अपनी तो सुन लो। सी आई शो यू, आई हैव गॉट 13 tattoos, ओके। मेरा हमेशा मन करता था टैटू, आई लव बीइंग टैटूड, ओके। सो आई मींस वी वर पोस्टेड इन Alva, I found a good tattoo artist and I went and got this tattoo done. Then उसने पहले ये वाला करा, सर मैम देखते हैं आपको लेड से पॉइजनिंग होती है कि नहीं होती है तो वील प्रोसीड आगे। मैं कहा नहीं तो कर दे भाई। ही सेड नहीं, कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर केस ठोक दोगी, तो हम धीरे धीरे करके करेंगे। सो फॉर गुड 1 month आई वेंट ऑन के पास जा के इधर कर दे, टांग में कर दे, लाइक आई हैव गॉट 1 here, आई हैव गॉट 3 on my back, ओके आई हैव गॉट 1 here। अब तुम बोलो मैं तेरा दिखाने शुरू कर दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये टैटू शो बन जाएगा। सो when I got this, I'll go back to the first. When I got this and I got this done, I went to Delhi. पापा से मिली and I showed it to my father and he said बड़ा सुंदर है। And he said कि कितने दिन में निकल जाएगा? I was like हैं? Literally that जो हिंदी में कहते हैं जी? And I was like निकलेगा नहीं, permanent है। And he was like, "Hey Ram, Ishwar Prabhu." He always used to say that when he used to be zapped. "Hey Ram, Ishwar Prabhu, लड़की तूने तो सब बर्बाद कर दिया। Like you know, कोई permanent tattoo कराता है, you've disfigured your body, ऐसा कुछ करता है ना." I was like, यार my children have like you know, मेरा बेटा कॉलेज में, मेरी बेटी नौकरी कर रही है। आई एम गुड 47 years of age and आज भी मुझे बताया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। I was like, अरे पापा वेट, बहुत सुन ली आपकी, हस्बैंड की, बच्चों की, हो गया। मेरी जिंदगी है, मैं वही करूंगी जो मुझे करना। नहीं अच्छा लगता, आंख बंद कर लो। कैन आई जस्ट लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लिव इट? Correct. He just got zapped a little bit, like you know, I think वो class 10th का उनको याद आ गया होगा when I said arts लेना है। It was a shocker like that and then he was like okay, he said और कितने करे हैं बेटा जो नहीं दिखा रही है? मैं कहा बस इतना ही करे हैं जो दिखा रही हूँ, पर और बहुत सारे करने हैं और मैं करूंगी। He then kind of like you know took it in, okay, बच्चा बड़ा हो गया है। At 47 he realized कि बेटी बड़ी हो गई है। So Right. So what I am saying is your question, like you know, we are all born imperfect. Correct. हम परफेक्शन फालतू में सीख करते हैं। We want to be perfect for everybody. I wanted to a perfect wife, a perfect mother, a perfect daughter. अरे भाड़ में जाए perfect। So वो perfection के चक्कर में I realize यार जी कौन रहा है? Correct. मैं तो नहीं जी। मतलब if we talk about personal life, professional life, we are just pleasing others. We are always thinking that people क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. So instead of them thinking of them, like start doing your own things. What you love, what you like. True, like you know, when I was in school and मेरे को एक टीचर ने बोला मैम ये चीज ने ऐसे अच्छी लगती है। ऐसा तो ठीक है आप कर लीजिए, मैंने रोका थोड़ी है आपको। नहीं आप भी ऐसे करोगे, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही। Correct. और एक बार मेरी जो कोऑर्डिनेटर्स थी, दे केम एंड टोल्ड मी कि मैम ये इंग्लिश का ना आपका ग्रामर खराब है इस लाइन का। आई सेड तो आप ठीक कर लीजिए। इसे नहीं आप ठीक करो। मैंने कहा ना मेरे हिसाब से ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है। आई एम अ लैंग्वेज टीचर यार, मैंने इतने सालों से सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई है। अगर मैं हिंदी पढ़ा रही होती या हिंदी में लाइन लिखी होती और आप मुझे कहते कि इसकी ग्रामर गलत है, मैं मान जाती क्योंकि मेरी हिंदी वीक है। बट इंग्लिश विच इज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, देयर यू टेल मी कि आई हैव रिटन रॉन्ग ग्रामर। ऐसे आप अपने डायरी में ठीक कर लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगी। आई नो दैट आई एम राइट, सो यू नो व्हाई शुड आई चेंज व्हेन आई एम राइट। मैं ये कहती हूँ कि देखो गलत चीज को एंडोर्स नहीं कर रही मैं। और अगर आपको पता है कि आप सही है, if you believe in what you do, if you know that what you are doing is correct, तो बिंदास करो and stand your ground for it, fight for it. Nobody can prove you wrong because you know that you are correct. And if you are wrong, then bow your head and accept. Correct. That is what my father taught me, courage of conviction. गलती की है, accept करो। मेरा हुआ था when I was in St. Anselm's about 25 years ago. एक क्वेश्चन पेपर मैंने ही सेट किया था उस टाइम पे and SST का था। By chance मेरे एक ही क्वेश्चन रिपीट में आ गया। मीन्स से क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पूछा है ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ग्लोबलाइजेशन का एक काइंड ऑफ डिफरेंस में डाल दिया उसको। इट वाज एन एरर ऑन माय पार्ट, इट वाज अ रिपीट ऑफ द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्म। ओके, बात घुमा के वही क्वेश्चन रिपीट करो।
And when I was reading out the first 15 minutes, आप पेपर पढ़ के बच्चों को बताते हो, I realized my mistake कि भाई मैंने ये गलती कर दी है. Now what? So I immediately went up to Father Aniket and I said, Father, I need to speak to you. He said, क्या हुआ? I said, Father, मैंने गलती कर दी है. He said, what do you mean by गलती कर दी? मैंने कहा, Father, unknowingly and erroneously I have asked the same question again in a different format. Right. I am at fault. What do I do now? आप बताइए. मैं बोल रही हूँ कि मैंने गलती की है. I accept my mistake. He saw the paper and he looked at me and said, how could you do it? I said, I'm sorry father, but I did it. हो गई गलती, मैं मान रही हूँ गलती. So he said, छोड़ दो वो question. You don't speak about it, I'll handle it. Simple. And then he told me कि just draft one question, go to the boards, I'll give you a relief teacher. जिस classes में तुम्हारा ये paper चल रहा है वहां जाके question board पे different question लिख कर आ जाओ and question paper में लिख के submit कर दो. That was all. I never covered my mistake. I did not give false justification for the mistake I've made. I know I have done a mistake. I offered my head कि यार गलती कर दी, काट लो गला काटना है तो. That is the best way. Like that is the best way to. He just told me one line, how could you do it? And then he said, okay, भूल जाओ. Correct. अगर मैं justify करती, गलत होता, So that is what I say. अगर सही हो, डटे रहो, गलती की है, have the courage to own it up. Correct. That's the best way. So on to it further, if I ask you like, how do you envision applying the core theme of empowerment through embracing diversity and imperfection in your work to inspire and bring about the positive change in the lives of others? Maybe if we talk about others here, probably the students. First of all, I would say, Jitendra, we are all empowered. हमको किसी को empower करने की जरूरत ही नहीं है. True. We are all empowered. Is just that we are told by others that we are not good enough. Correct. And sadly, we start believing that. Very sad. But अभी एक मैंने article लिखा था about 60 things, 60 phrases. There are more to it that parents, we as parents should not tell our children. What we do is हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं ऐसे करती थी. अरे छोड़ो ना, आप उसको आगे नहीं ला रहे हो. यू आर टेलिंग द चाइल्ड कि यू आर अ गुड फॉर नथिंग, आई वॉज बेटर देन यू. ठीक है ना. अगर आप बोलो वो शर्मा जी का बेटा देखा है 90% लाता है, तुमको देखो एक मेरे ही बच्चे थे, मैंने क्या गलती कर दी थी जो मेरे बच्चे को नंबर नहीं आते. सबके बच्चों के अच्छे नंबर आते. तो व्हाट एम आई डूइंग? मैं अपने बच्चे को ये बता रही हूँ दैट कि आप गुड फॉर नथिंग हो. हम पेरेंट्स अपने बच्चे को बताते हैं कि सी उसका बच्चा अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो. मैंने मेरे बच्चे के पास जो इनर्ट गुडनेस है या उसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, वो लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, वो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, वो डांसिंग में अच्छा हो सकता है. हम वो सब नहीं देख रहे हैं. हम दूसरे के बच्चे के एकेडमिक सक्सेस पे देख रहे हैं. चाहे वो बच्चा गोटे खा खा के बोलता हो, मेरे बच्चे को रटना नहीं आता, मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट सीख के लिख रहा है. ठीक है, उसके कम नंबर आए हैं, उसके वर्ड टू वर्ड बुक बाय बुक लिखने से, जैसे आपका 3 इडियट्स में दिखाया था ना, बुक की डेफिनेशन या जिप की डेफिनेशन कुछ थी और उसने बोला था कि इसको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. सो समवेयर एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो एट फॉल्ट. बट मैं ये कहती हूँ एम्पावरमेंट बच्चों के लिए. हमारे बच्चे एम्पावर्ड है, वो बेवकूफ नहीं है. तभी किसी ने बोला था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. हम बच्चों को कंपेयर करते हैं. हम बच्चों की जो बच्चा कुछ जानना चाहते हैं ना, हम उसको अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, क्यूरियोसिटी उसको मार देते हैं. बच्चा कहता है नहीं ये चीज कैसे करनी है, मैं करके देखूं. नहीं 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 नहीं, इसको हाथ मत लगाना, सूर्य का नो 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 नो, उसको पहले ही नो कर देते हैं. करेक्ट. फिर बच्चा कहता है कि पापा ये कैसा होता है, मम्मी ऐसे कहता है, मम्मी ये क्यों हुआ. बाद में आना बेटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ. आपने वहीं पे उसको मार डाला. उसको याद नहीं रहेगा और उसको एक मैसेज जाएगा दैट माय पेरेंट्स डोंट हैव टाइम फॉर मी because maybe I have asked the wrong question, so he learned not to ask. Correct. He will learn not to ask. ऐसा भी क्या काम है, आप एक बार सुन तो लो वो क्या बोल रहे हैं. Then उसको आप just satisfy his curiosity and tell him कि 5 मिनट बाद मेरे को याद दिलाना, we'll come back to it and then I'll have more time. Correct. Child will remember to come back to you, you know. बजाय उसके कि आप बोल दो कि भाई अभी जाओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं. इट्स वेरी रॉन्ग थिंग. तो हम जब ऐसी चीजें करते हैं ना जितेंद्र, समवेयर और दी अदर वी किल दैट क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड. हम उसके वो जो इच्छुकता है ना जानने की, करने की, उसी को तोड़ देते हैं. एक ऐसा एक्सपेंसिव टॉय ला के देंगे और बच्चा जब उसको खोलने लगता है रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो उसको कहते हैं अरे यार इतना महंगा खिलौना तोड़ दिया तुमने. या तो लाके क्यों दिया था, मत दो ना.
बच्चा है, तोड़ेगा, जोड़ेगा, ठीक है ना, और करेगा। बच्चे करते हैं एंड वी किल देयर क्यूरियोसिटी। तो जहां तुम मेरे को ये बोल रहे हो ना, इम्परफेक्शन, एम्पावरमेंट, आई वुड से बच्चे एम्पावर्ड है, वी लेडीज आर एम्पावर्ड। एक बार ना अंदर हमको देखना है कि हमें क्या आता है, खुद को एक्सेप्ट करना है, अपने फॉल्ट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करना है, देखना है। और किसी से दिक्कत होती है तो आई वुड से टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड नोट डाउन योर स्ट्रेंथ्स and opposite में your weaknesses. Right. You will come face to face with it and you will see कि weakness हमारी एक या दो ही निकल के आएंगी, strengths बहुत सारी निकल के आएंगी। तो इसको सेल्फ एम्पावरमेंट हमारी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत तब पड़ती है जब मैं देखती हूँ किसी बच्चे को कि नहीं कर पा रहा, और वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा होता है, इज बिकॉज या तो उसकी टीचर, या तो उसके पेयर ग्रुप, या फिर उसके सिबलिंग्स, या फिर उसकी मदर, कहीं से उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है, या सोसाइटी या रिलेटिव्स उसको बता रहे हैं कि तुम ना कर पाओगे। करेक्ट। हाँ, उसका लगने लगता है मैं सच में नहीं कर सकता। दूसरों को तो मेरे बारे में ज्यादा पता है। व्हाट आई वुड से, दूसरों को कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, वो एक तुक्का छोड़ रहे हैं। And also it happens, every student have some or the other qualities. हर कोई सेम चीज में तो नहीं हो सकते बराबर। एक बिल्कुल नहीं हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है बहुत वो स्टडीज में बहुत अच्छा है, और तीसरा स्टूडेंट हो सकता है कि वो दोनों में अच्छा नहीं है, बट उसका जो ओवरऑल EQ IQ है वो बेटर है। हाँ, करेक्ट। एवरीबडी हैज हिज ओन वो, बट हम कहीं ना कहीं टीचर्स आर एट फॉल्ट, स्कूल इंस्टीट्यूशंस आर फॉल्ट पे है, बिकॉज हमको क्या बोला जाता है कि एक निकालो। तो जब हम 10 में से या 100 में से छाट के एक निकालते हैं ना, हम कितने सारे वर्दी बच्चों को साइड कर देते हैं, क्योंकि कोई छोटी सी गलती है जो कि बच्चा 2-3 बार बोल के ठीक कर देगा, हम ऐसे बच्चे को लेते हैं जो पहली बार में ही ठीक कर दे, बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ टेकिंग अ चांस। तो मेहनत करने से भी तो डरते हैं हम, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, देन हाउस कॉम्पिटिशंस होते हैं, वी ऑलवेज पिच द बेस्ट। हम किसी दूसरे को चांस ही नहीं देना चाहते, क्योंकि पता है भैया ये तो श्योर शॉट विनर है, दूसरे के ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने एज अ मेंटोर, मैंने डिबेट्स में बच्चे खड़े करे हैं, मेरे को ना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों के साथ काम करने में बिल्कुल मजा नहीं होता। जो एटीट्यूड दिखाते हैं ना बच्चे, एटीट्यूड वाले होते हैं, और जो समझते हैं कि टीचर तो पैर की जूती टाइप की है, हम मेडल लेके आ रहे हैं, हम ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, तो हम है, टीचर क्या है। मेरे से ऐसे बच्चों के साथ ना काम नहीं करा जाता है। यू कैन कॉल इट माई ईगो, यू कैन कॉल इट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन पुट एनी नेम टू इट, ठीक है ना। मोस्टली पीपल कॉल इट ईगो, दैट्स वेरी इजी फॉर देम टू लेबल। सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को दिमाग में आता नहीं है वर्ड की, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज हो सकती है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई देन प्रेफर टू ग्रूम अ चाइल्ड जिसने कभी डिबेट नहीं की, जिसको डिबेट ही नहीं आती। मैं ऐसे बच्चे को खड़ा करती हूँ कि बेटा तू करेगा, तू कैसे नहीं करेगा, तू करेगा, तुम पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, योर ओरेटरी स्किल्स आर देयर, यू कैन रीड वेल, देन व्हाई कांट यू जस्ट सिट इन अ डिबेट। सो आई हैव एक्चुअली ब्रॉट अप एंड माय चिल्ड्रन विल वाउच फॉर इट कि मैम हमको कभी नहीं किया था, हमने कभी डिबेट नहीं किया। आज वो MUN में जा रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, इसे आज अगर आपने हमको तब खींच के नहीं निकाला होता, रो रो के खड़े हुए थे, हमसे नहीं हो पाएगा मैम, वो अच्छे बच्चे। मैंने कहा तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तो फीस दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि तुम पीछे रह जाओ। आई बिलीव इन यू, मेहनत करो, मैं करूंगी, मैं 10 बार सुनूंगी, 20 बार सुनूंगी, फोन पे सुनूंगी, सुनती रहूंगी जब तक तुम ठीक नहीं बोलोगे। पर करोगे तो तुम ही बेटा। तो बच्चे को ये लगता है कि भाई अगर मेरी टीचर मेरे पे इतना फेथ रख रही है तो मुझ में कुछ तो होगा ना। मैंने ऐसे बहुत बच्चे निकाले हैं जो कि फर्स्ट टाइमर्स है, जितेंद्र, एंड दे हैव डन वेल। जैसे मैंने पहले कहा था ना, क्या करना है बताओ मत, करके दिख। मैंने फर्स्ट टाइमर्स निकाले जिनको कुछ नहीं आता था, जिनको डिबेट नहीं आती थी, टॉक नहीं आती थी, बैठी हूँ, कभी घर पे बुलाया, कभी उनके घर पे गई हूँ, मेहनत लगाई है, फोन पे सुना है, दोबारा बोल, रिकॉर्डिंग करके भेजिए, दोबारा बोलो, पॉजेस कहाँ लेने हैं बता के उनको। एंड आज भी आई डू दैट व्हेन आई हैव कॉम्पिटिशंस ऑन माय आयरन टॉक्स, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के। आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, जूरी अलग होती है। सो आई टेल द चिल्ड्रन कि जिसको कंपटीशन में पार्ट लेना है, आप लोग पब्लिक स्पीकिंग में पार्ट लीजिए, अपना वीडियो मुझे भेजिए, आई फर्स्ट लिसन टू इट, आई टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग, हिम्मत है दोबारा बनाओ, भेजो, मैं दोबारा देखूंगी, दोबारा गलती बताऊंगी, बट जब जूरी के पास जाएगा इट शुड गो द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मेरे पास 50 बच्चे आते जितेंद्र, मैं 50 बच्चों की वीडियो देखती हूँ, 50 बच्चों से लेती हूँ,
एंड माई फीस इज वेरी लेस, इट्स जस्ट 300 पर चाइल्ड, बट उस एक एक बच्चे के साथ में इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे लगता है मेरे ही तो बच्चे हैं. I don't know those kids, but I feel that they should have a square chance, right? आगे जूरी के सामने. So I give it to them. They're all first timers. So मैं ये कहती हूँ, दूसरों की सुननी बंद करो. हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट, बंद कर दो सुननी. और जो तुम्हें बोलता है ना कि तुम नहीं कर सकते, समझ जाओ वो तुमसे जलता है. देखो, जो पीठ पीछे बात करते हैं ना, वो तुमसे पीछे ही हैं. जो तुमसे पीठ पीछे बात करते हैं, जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, परेशान मत हो ना, वो तुम्हारे पीछे है, तभी तो पीठ पीछे कर रहे हैं. तो उनके बारे में सोचने ही क्यों? ट्रू, दिस इज वन ग्रेट थॉट, आई मस्ट से. ये चीज अगर हम सोचना शुरू कर देना तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी. ठीक है ना. तो वो कहते हैं ना, बद रहो, बदनाम रहो, पर गुमनाम ना रहो. ग्रेट. करने दो बुराई. इसका माने आप में दम है, इसका माने आप जो कर रहे हो ना, सही रास्ते पे चल रहे हो, तभी लोगों को खटक रहे हो. करेक्ट. तभी. और जो पीछे पीठ पीछे बोल रहे हो, वो तो वैसे ही पीछे है. तो उनसे ना मैं यही करती हूँ अपने लाइफ में. कोई मुझे बोलता है ना तुम नहीं कर सकते, अच्छा आप तुम देखना, अब तो मैं करके दिखाऊंगी. मेरे को बोला था आप बुक नहीं पब्लिश कर सकते, मैंने कहा अच्छा कर दी. सो इट्स लाइक आई डोंट, जो मुझे बुरा बोलते हैं ना, मैं उसको, मैंने रोती नहीं हूँ. I take it in a positive sense. So वही मैं बोल रही हूँ, empower yourself and खुश रहो. कोई तुम्हारे बारे में पीठ पीछे भी बात करता है, खुश रहो. At least you are worthy of it. Correct. So That's the way. You should feel proud कि लोग बात कर रहे हैं. That means you have something. जब तुमने तुमने उनको याद भी नहीं किया और वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, इसका माने तुम कुछ तो हो ना. Correct. वहीं से शुरुआत करो. Surely, that's really wonderful to know. Now, next question is about you again. Are you an introvert or an extrovert while meeting people or facing larger audiences? And what do you think plus or minus of the same is? Though I know this, but I'm still asking you. See, I would say I am a 50-50 mix. I am an introvert in a sense that I would like to मुंह खोलने से पहले मैं थोड़ा सीन देखना चाहूंगी, फिर मैं बोलती हूँ. बट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट as in like I'm not shy to make friends. I'm very cool with making friends. I'm very cool with talking to people and I don't judge them. भाई आप जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आओगे ना. Now it's up to me, either I accept you or I reject you. But who am I to judge you? ठीक है ना. आपने छोटे कपड़े पहनने, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. आपने टाइट कपड़े पहनने हैं तो मैं कौन होती हूँ. आप कंफर्टेबल होने चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे पहनने को मत बोलना, जब तक मुझे करने को नहीं बोलोगे आई एम फाइन विद इट. सो आई एम प्रीटी ओपन एंड इट्स ओके विद मी. लाइक आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ. And I go quiet when I don't like something. One thing I have learned in life is मुंह खोल के अपने डिप्रेशन को बता देना एक तरीके से ना चीज खराब हो जाती है. आप कहते हैं ना दही जम गया ना दूध का, तो वो वापस दूध नहीं बन पाता. Right. So maybe I am wrong, maybe the other person is wrong, I don't know, but it's better to keep quiet. Sometimes it is better to keep quiet. कहते हैं ना एक चुप्पी में, कहते हैं ना बहुत सारी चीजें चुप्पी में निकल जाती हैं. So अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहीं पे, it's better to be quiet than open your mouth and prove that you are a fool. Let people think, but don't give them a reason to believe it. Correct. So, and if you're very confident, go ahead, talk about it. Like, I'm very comfortable talking to people, so I talk to people. Right. Where I feel I should keep quiet and just observe, I do that. So I would just tell people that कि जहाँ पे भी हो उस सिनेरियो को देखो and उस हिसाब से like situational, be flexible. The name of the game is flexibility. जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, चुप रहना चुप रहो, जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ो भी, तब चुप नहीं रहना. घर आके रो काश मैंने ये कह दिया होता. अब नहीं, वो तो बोट निकल चुकी है, तो उस टाइम पे बोल दो. I tell my daughter, I tell my children कि मैंने घर आके मेरे पास मत रोना कि उसने मुझे ऐसा कहा. सुनाना है तो सुना के आ जाओ. Right. I tell my daughter she is working, ऐसे बता के आ जाओ. If you don't like something about somebody, tell it very gently. उसको मैंने थप्पड़ मत मारो मुंह पे, बट सामने वाले को बता दो कि मेरे को ये चीज तुमने मुझे बोला, it hurt, I did not like it. Right, ma'am. Right. That person will either apologize or just not say anything, but will make sure that he will not do it again. Right. Let it be known that you haven't liked it. You can't expect ना कि आप इंट्रोवर्ट बन के बैठे रहो और अंदर ही अंदर घुटते रहो, जलते रहो, मरते रहो और फिर सामने वाले को ब्लेम करो. उसको तो पता ही नहीं कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा. बट नेचुरली वो तो बोलेगा, तो बता दो. नॉट दैट डिफिकल्ट. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बात नहीं करेगा, अच्छा है
एंड इफ ही केयर्स अबाउट यू, वो अपना तरीका सुधार के बात करेगा. सो यू हैव रिमूव्ड अ टॉक्सिक पर्सन फ्रॉम योर लाइफ और यू हैव कन्वर्टेड अ टॉक्सिसिटी इनटू पॉजिटिविटी. Either ways, your benefit. Right, ma'am. That's really wonderful. So, if I talk about the kind of support you got in your journey, who were the people supported you the most? My father first. He has supported me in everything I have done, right from not pursuing science to whatever, to marrying the choice of husband I wanted to marry. मेरा love marriage था. So, and I just very plainly I told पापा कि this is the man, I like him. आप देख लो, अच्छा लगे तो हम शादी कर लेंगे. And he was very supportive about it. Though second my husband, like मेरे जो जुनून है ना जानवरों का, rescuing dogs, cats, animals, working for them, दिन हो या रात हो, he has supported me throughout. Right. I fight with him, I argue with him. He's my friend, he's my guide, he's my pal, he's my mentor at times. अब dad है नहीं, but I miss him a lot. पापा होते थे, he used to guide me. So in my life journey, my father has played a very big role in shaping me, and he has taught me certain things in life which I can never forget. Right. जिसमें से एक मैंने आपको बताया, courage of conviction. Correct. And my husband, he has taught me कि कुछ भी हो जाए, अगर तू सही है तो झुकना नहीं. Right. This is what he has taught me, and this is what has helped me a lot in life. Though sometimes it has worked out against him also, because अगर मैं सही हूँ तो मैं लड़ूंगी कि मैं सही हूँ. So it has worked out against him also in many cases. But still he has been supportive about that. He's never stopped me. Correct. अपनी मर्जी की करती हूँ, मनमौजी हूँ, दिल से सोचती हूँ, डिसीजंस भी दिल से लेती हूँ. And at 53 where I stand today, I can easily say that I have lived my life on my own terms. Great. Not as others wanted me to. अपने मन की है. I have not harmed anybody, but जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो. Right, that's the better way. नुकसान नहीं किया, but मैं खुश हूँ. Great. So now, if I talk about how you get your motivation and inspiration in your life, so what are the ways you get? My inspiration is, see, whenever I like to read, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. So my inspiration is reading poetry. एक मैंने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आपको पहले बताया था. And second my inspiration was रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका वो गाना था जो दिको डाकशुने के ना इशे तबे एकला चल. So वहां से मैंने ये सीखा है कि if I have to walk my path, आना है आ जाओ, नहीं आना मत आओ, अकेले चलना है अकेले चलूंगी. So these are certain things, like you know, they're very pretty common, but क्या होता है हम लोग देख के छोड़ देते हैं. Then my next inspiration comes right from my animals. So if you look at the eagle, it soars high above the clouds. वो बादलों को नीचे माने इतना नहीं देखती, ठीक है ना? It looks एक bird's eye view लेती है, but then it does whatever it does in a very focused way. Correct. Right? So that is what I have learned. I'm not perfect. I said I'm always imperfect, but I try. In spite of being imperfect, I try to do the things as best as I can do. To satisfy myself, not others. दूसरे खुश होंगे इसलिए नहीं, मुझे खुश होना चाहिए. If I am not satisfied, I'll do the same thing all over again till the time I am satisfied. My satisfaction is primary. मुझे ही नहीं चीज अच्छी लगेगी तो मैं किसी और को क्या बोलूंगी. So I have to be inspired by my own self. मेरी अपनी satisfaction 100% होनी चाहिए. अगर वो काम, मैं पहली चीज तो अगर मुझे नहीं करना, मैं उठाऊंगी ही नहीं वो काम. I have learned this. And करना है तो फिर टोटली करूंगी. तो आप बोले एक तरीके से मैं खुद ही को इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि जो मुझे बार बार करना पड़ता है ना वो काम, मुझे पता लगता है वो काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. और एक और चीज है श्री रविशंकर का. एक टाइम ऐसा आया था when I was passing through a very bad phase. I was almost into depression type का अटैक आ रहा था. दो मेरे को कैसे आ गया, because maybe I was surrounded by very many toxic people. और बहुत सारी मेरे ऊपर ऐसी एलिगेशंस लगाई गई थी जो मैंने बोली ही नहीं थी, जिनकी इतनी अफवाह उड़ाई गई थी कि मैं बंद होती चली गई एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन लिटरली. सो उस टाइम पे मेरे दो फ्रेंड्स थे who were not my CEO's wives but from different regiment, and they saw me and they said तेरे को ये कोर्स करना है. उस कोर्स में मैंने ये सीखा, श्री रविशंकर के कोर्स में, कि दो तीन चीजें मैं बता रही हूँ. इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो. जो आपके आंख में आंसू देख के खुश है ना, वो आपकी सोच के लायक भी नहीं है. ठीक है. दूसरा,
I was asked a question. मैं बहुत short में बताती हूँ वो चीज. I was asked a question. Say I have got 4 years to live and I know कि 4 साल के बाद मैं मर जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी. I made a list of things. Then I was told कि अब आपको 2 साल देते हैं. अब क्या करोगे? I बहुत सारी चीजें काट दी. फिर मेरे को 2 महीने दिए. फिर मुझे 2 दिन दिए. आप सोच सकते हो मैंने कितने दिन काटे, कितनी चीजें काटी. फिर मेरे को 2 मिनट दिए. बोला कि अब आप ये सोचो कि आप अगले कुछ मिनट्स में मर जाओगे तो क्या करोगे. तब मेरे को एक चीज दिमाग में आई. मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपनी माई लव्ड वंस, यू नो, माई डॉग्स, माई किड्स, माई हस्बैंड, माई मदर, माई फादर, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ. क्वालिटी टाइम. ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ खुशी चाहिए. राइट. मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ खुशी चाहिए. दैट इज द टाइम ही सेज, जब तुमको ये ही नहीं पता कि तुम कब मरोगे तो व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट आर इमटेरियल इन लाइफ. करेक्ट. मटेरियलिस्टिक गोल्स, मटेरियलिस्टिक चीज. वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया, मैं उसको कैसे खुश करूं. तो इन सब फालतू चीजों में तुमने अपनी सारी एनर्जी निकाल दी. पर तुम्हारी मदर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे डॉग्स, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा घर, जो सबसे क्लोज है तुम्हारे को, उनको तो तुमने देखा ही नहीं. तो क्या जिए. तुमने खुद को ही नहीं देखा तो तुम क्या जिए. ट्रू. दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि यार मैं तो पागल हूँ. मैं उन सब लोगों को लेके डिप्रेस हो रही हूँ जिनको मेरी कोई परवाह ही नहीं है. हाँ, ट्रू. मैंने उनको इतना तवज्जो दिया, इतना बड़ा बना दिया अपनी लाइफ में. मैंने अपनी खुशी की चाबी ऐसे लोगों के हाथ में रख दी जो मुझे दुखी देख के खुश है. मैंने मुझसे बड़ा गधा हो सकता है कोई? नहीं ना. आई एम अ सुपर इडियट. सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, आई एम ऑन द रॉन्ग. मैंने तो प्लेटफॉर्म क्या, ट्रेन क्या, सभी कुछ गलत पकड़ा हुआ है. So then I realized कि no, my happiness is me first, then my children, then my husband, then my dogs, then my parents, but me first. So I have to be happy. और ये मेरे को जब भी मैं कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना, ये जब मेरा काम नहीं हो रहा होता है या मेरे को होता है ना, आप सुनना शुरू कर दो. You can't be perfect. Like I said, I am imperfect. So you things do come back to you. तब मैं उस सेशन को याद करती हूँ श्री रविशंकर के. एंड देन मैं योगा तो नहीं करती हूँ, बट हाँ वो बातें याद करके इट हेल्प्स मी गेट बैक ऑन टू माई फीट. करेक्ट. एंड अगेन टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ. सो मैं बस यही कहते चाहती हूँ आपके शो के थ्रू कि लाइक जो आपके आंख में आंसू दे वो आपकी सोच के लायक नहीं है. जो आपके पीठ के पीछे बात करे वो वैसे ही पीछे है. उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट ना करो. सोच टाइम वेस्ट. इट्स टाइम वेस्ट. सो करेक्ट. थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट. करेक्ट. दुनिया आपकी प्रायोरिटी नहीं है. लोग क्या कहेंगे आपकी प्रायोरिटी नहीं है. आप अच्छा करोगे तो भी लोग बुरा बोलेंगे, तो चलो थोड़ा कुछ बुरा करके ही बुरा बन जाओ. एटलीस्ट आपने उनके वैलिड रीजन तो दिए ना बोल के. करेक्ट. आपने उनको ना बोला, आप बुरे बने. आप हाँ बोल के भी बुरे बन रहे हो, तो ना बोल के बुरे बन जाओ ना. क्या फर्क पड़ता है. बुरे तो आपने बनना ही है. That's true. आप जो मर्जी कर लो, लोगों को खुश नहीं कर सकते. हम खुद को बदल सकते हैं ना. बेटर है. मैं दुनिया को बदलूं, मैं खुद को ना बदल लूं. दुनिया बदलने चली हूँ जिसका मेरे पर कंट्रोल नहीं है. खुद को बदल नहीं रही हूँ जिसका मेरे पर पूरा कंट्रोल है. करेक्ट. So I should change myself. दुनिया अपने बदल जाएगी. So on to this further, like जो अभी आप बात कर रहे हो, तो on to this further, what is your take on success? What like how does it look like to you? See, success is a very relative term. Success in what? Success in human relationships, success in earning money, success in fulfilling promises, success in having lived a full life, or success in being a people pleaser. So सक्सेस एक बड़ा रिलेटिव टर्म है. अगर मैं बोलूँ मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ एज अ टीचर, एज, तो आप सोचो मैंने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं. मैंने खुद को कितना दुखी कर दिया होगा रास्ते में. तो बी कॉल्ड सक्सेसफुल बाय अदर पीपल, आई मस्ट हैव मेड माई सेल्फ अनहैप्पी सो मेनी टाइम्स. मैंने खुद को कितना मारा होगा, कितनी खुशी मारी होगी. पर अगर मैं बोलती हूँ यस आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव लिव्ड माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स. ठीक है. सो आई माइट बी अनसक्सेसफुल टू पीपल. कोई मुझे ये बोल सकता अरे यार ये इसका साल का टर्नओवर तो 4 लाख
भी नहीं है, तो ये क्या सक्सेसफुल है? इससे अच्छा तो ये नौकरी कर रही थी, 40-50 हजार रुपए कमा रही थी, अपना क्यों शुरू करा, क्या करा? करेक्ट। तो आई एम अनसक्सेसफुल, है ना? बट मेरे को लगता है मेरा चाहे 4 लाख का टर्नओवर ना हो साल में, चाहे 2 लाख का ही हो, पर मैं आराम से बैठी हूँ, अपने टाइम से उठ रही हूँ, अपने टाइम से सो रही हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं जो मेरे मन को खुश लगता है मैं वो कर रही हूँ, मेरे को लगता है आई एम सक्सेसफुल, आई एम एबल टू मीट माई नीड्स। एक वो कहावत नहीं है, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साईं भी भूखा ना जाए, समथिंग लाइक। मेरे जरा हिंदी खराब है, हाँ, बट मेरे को क्रक्स इतना पता है कि गॉड गिव मी इनफ that I am able to meet my needs, I am able to feed anybody that is wanting food, I am able to save for the rainy day, and I am able to indulge। तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, मैं आराम से अपने शौक पालती हूँ, सारे शौक पालती हूँ, गाड़ी मेरी ऐसी हुई है, परफ्यूम्स मेरी A1 होती हैं, मैं मजे से गाड़ी चलाती हूँ, मैं अपना पैसा उड़ाती भी हूँ जहाँ करना होता है। जब मेरे को पैसा खर्च करना है, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में कोई आता है वो भूखा पेट नहीं जाता, मेरे पास टूटा फूटा जानवर आता है, मैं पैसे देती हूँ। मोस्ट ऑफ माई सैलरी गोज इन चैरिटी, कभी एनिमल्स को दे रही हूँ, वाइल्ड लाइफ SOS हाथियों के लिए दे रही हूँ, आगरा मथुरा में कभी ये डॉग्स के लिए लेके जा रही हूँ। एंड राइट नाउ आई हैव गॉट 3 डॉग्स, वन इज अ रिटायर्ड ओल्ड पुलिस CISF डॉग, 11 साल की है तब मैंने अडॉप्ट करा, 11 साल के बुढ़ापे में मैंने इस कुत्ते को अडॉप्ट करा। दूसरी है, शी इज अ पुलिस डॉग, शी इज टोटली ब्लाइंड, उसको मैंने अडॉप्ट करा 9 साल में। तीसरी मेरी है हु हैज गॉट कैंसर, उसके 2 बार ट्रीटमेंट्स करा चुकी है, कॉकस स्पैनियल, उसको अडॉप्ट करा। फोर्थ की डेथ हो गई है मेरी, ओके, शी हैड मैलिग्नेंट कैंसर, 3 सर्जरीज कराई, कॉस्टेड मी ओवर 1 लाख रुपीज, आई इन्वेस्टेड इन हर। मुझे पता था 3 महीने में मर जाएगी, स्टिल मैंने किया, जितनी देर रही खुश रही। चौथा मेरे एक ब्लाइंड डॉग था, अगेन दीज आर ऑल लेफ्ट ओवर अबैंडन डॉग था, ब्लाइंड हो गया, सिस्टर सर्कसिस हो गया, मिर्गी के दौड़े आते थे, उसको ओनर ने फेंक दिया, मैं उसको घर ले आई, उसको देखा, पाला जब तक वो मर नहीं गया। सो मैंने अपना पैसा बिना सोचे ऐसे के ऊपर खर्चा करा है जिसको जरूरत है। करेक्ट, भगवान ने मुझे उतना दिया है, तो आई एम सक्सेसफुल। आज मेरे घर में कोई आता है, खाना खा के जाता है, भूखा नहीं जाता, आई एम सक्सेसफुल। मेरे को जो जहाँ खर्चा करना है मैं करती हूँ, आई एम सक्सेसफुल। रात को आराम से सोती हूँ बिना ये सोचे कि IT की रेड हो जाएगी मेरे घर में, इनकम टैक्स को जवाब देना है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम सक्सेसफुल। सो सक्सेस इज रिलेटिव। इसको पैसा 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 और चाहिए, वो सक्सेस को पैसे से नापता है, मैं सक्सेस को खुशी से नापती हूँ। Correct. That's really wonderful one. Now we are on last one. Like any message or advice you would like to share with our viewers and listeners? वैसे तो मैंने बहुत बकबक कर दी है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए है, बट आई वुड जस्ट से फोकस ऑन योरसेल्फ। दुनिया मत बदलो, खुद को बदलो। अगर इतनी सी जिंदगी है, हमें पता नहीं हम 30 जिए, 50 जिए, 80 जिए, 100 जिए, कितना जी के जाएंगे, ठीक है? आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, आई डोंट नो वेदर आई विल बी अलाइव टुमारो, राइट? सो मेक योर लाइफ काउंट। सिर्फ अपने लिए मत जियो। अगर आपकी जिंदगी से, आपके ह्यूमन फॉर्म लेने से, आपके जिंदगी से किसी को फायदा हो सकता है तो किसी के लिए जियो। मेक योर लाइफ यूजफुल। आई एम डूइंग दैट विद माई लाइफ। मैं शुरू में आई फेस लॉट ऑफ फ्लैक, ये टूटे फूटे कुत्ते घर ले आती हो, अबैंडन डॉग्स को घर ले आती हो, कहीं घूमने नहीं जाती हो। माई सिस्टर इज बेस्ड इन UK, मैं अभी तक उससे मिलने नहीं गई, मैंने उसका घर नहीं देखा है। जब से मैंने आर्मी छोड़ी है पिछले 4-5 साल में, अगर मैं घूमने जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, अगर मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं घर पे रहती हूँ। somebody is always home with my dogs because they are all old dogs who need care, you know। सबने मुझे बोला कि तुम पागल हो यार, कुत्तों के पीछे कोई जिंदगी खराब करते। मैंने कहा मुझे खुशी मिलती है मेरे पैसे से, मेरे होने से। अगर किसी को फायदा है तो maybe I have lived my life the way God wanted me to live. Correct. My life is of some use to somebody, rather be of no use to anybody. किसी को तो मेरी जरूरत है। So make your life count. True. Money is not important, but what is important is that you should live your life king size. जियो, खुल के जियो। जीने का मतलब पैसे कमाना नहीं होता, जीने का मतलब खुशी होती है। खुश रहो, खुशी बांटो, खुश रहो, खुद से खुश रहो, खुद को एक्सेप्ट करो और फिर दूसरों को।
Correct. Be That's happy. really wonderful thing. So I must say it was really an amazing insights you have shared about your life, your thoughts, your journey, as well as the learnings you have shared. Was really wonderful. You have spoken about the actual meaning of our life, how we can accept our own self, our own imperfections, perfections, whatever we have. The first thing is we should accept them. We should understand them, and then we should take a charge of our own life and see what best we can do for our own self and others. So it was really wonderful. Whatever you shared was really amazing and really lots of learning today. I am thankful to you for your time, your energy, and sharing all these things with all of us. Thank you so very much, ma'am, and looking forward to hear more from you again soon. थैंक यू जितेंद्र. आई थिंक मेरे जितनी बकबक शायद किसी ने की नहीं होगी तुम्हारे शो में. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, आई लव टॉकिंग एंड आई लव शेयरिंग माय व्यूज. और मेरे को लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, लाइक यू नो, भागते रहने में, ट्राइंग टू प्रूव दैट वी आर सक्सेसफुल. हम सक्सेस ही भूल जाते हैं क्या है. So we are running after the wrong kind of success. We should take charge of ourselves. Correct. And I would thank you so much मेरे को इतना सुनने के लिए और टाइम देने के लिए कि मैं अपने व्यूज रख सकूं सामने. Thank you, ma'am. I'll also share your social media link so that people can be in touch with you, take your help and guidance also wherever they feel like. So, guys, don't forget to check that out. And thank you so very much, everyone, for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a good time. Thank you, and bye bye.